Good morning, children. In previous video, we have discussed about principle of homogeneity of dimension. I'm repeating again, what is the principle of homogeneity of dimension, beta? It states that dimension of each term in equation must be same. First thing. Second thing, in any equation, same physical quantity can be added or subtracted. Means beta, we can add only 5 kg to 2 kg, not 5 kg plus 2 meter. Okay, so neither we can add or not we can subtract. Understood? So homogeneity क्या कहती है बेटा कि we can add or subtract only same physical quantity. Or second thing, you have to say that each term in any equation, each term, dimension of each term will be same, and we have seen one example as well. So now today we'll see one or two more example. Okay beta, let's see first example where x is equal to a plus bt plus ct square plus dt divided by e plus t. Okay, take here dt square. Okay, in this question they are saying that find the dimension of this numerical. This example is based on homogeneity beta, means dimension of each term will be same and only same dimension, जिसका same physical quantity can be added or subtracted. ये दोनों चीजें ध्यान में रखो तो देखो एग्जाम्पल आपको इजी लगेगा. फाइंड द dimensions of A, B, C, D and E. ये इसके डायमेंशंस आपको फाइंड करना है. वेयर जो आपको कुछ चीजें गिवन है बेटा. हियर x इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस. ओके, एंड t is time. So two things are given and you have to find the dimension of A, B, C, D and E. Let's see how to find beta. सबसे पहले आपको क्या करना है, सबको एक साइड कर लेना है. ओके, सो x माइनस a माइनस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी स्क्वायर होल डिवाइड बाई e plus t equal to 0. So on the basis of homogeneity beta, dimension of each term must be same. Okay, so सभी term का dimension क्या होगा बेटा, same होगा. It's mean that dimension of x is equal to dimension of a. तो x का dimension और a का dimension same होगा, means d dimension of D for dimension I am writing here beta. Dimension of x is equal to dimension of a. X is displacement. Displacement means length beta. यहाँ पर distance cover हो रहा है, so distance हम किस में measure करते हैं, length में. So dimension of x will be L1. So that will be a dimension of a. So a का dimension निकल गया आपका. Now next dimension of BT. होमोजेनिटी में ये बोला गया कि dimension of each term will be same. Okay, it's mean that dimension of x, dimension of a, dimension of BT, dimension of CT and that term will be same. सबके dimensions same होंगे. आया समझ में? ये तो आपकी पहली चीज हुई. सेकेंड थिंग,
अगर यहाँ पे बेटा डायमेंशन x का और a से सेम हुआ तो x का b से सेम होगा, ऐसा नहीं, होल टर्म की बात हो रही, तो x का डायमेंशन और bt का डायमेंशन सेम होगा। ईच टर्म का डायमेंशन सेम है, ये होमोजेनिटी बेस्ड है। सो अगेन वी नो दैट डायमेंशन ऑफ x इज, अभी निकाला था बेटा, तो पूरा आप लिख सकते हो, पूरा डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt, डायमेंशन ऑफ bt एंड t इज टाइम। सो डायमेंशन ऑफ t बेटा क्या हो जाएगा, ओके, एंड यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ b। सो हियर b, t इज हियर मल्टीप्लाइड, दैट साइड क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में हो जाएगा, उसको आप ऊपर लोगे तो पावर क्या हो जाएगा, t की माइनस हो जाएगा। सो डायमेंशन ऑफ b will be L1 t minus 1. Understood? I'm repeating again beta. Dimension of x and dimension of bt. bt is a whole term, not b you have to take. So by dimension of bt equal to dimension of x. So bt का डायमेंशन आपको निकालना है और x का डायमेंशन होता है l. bt में t is the time, so डायमेंशन उसका क्या हो जाएगा, t. ओके, अब ये t इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड में जाएगा बेटा, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, l डिवाइड बाई t, बट अब उसको जब ऊपर लोगे तो पावर माइनस हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ b इज l t माइनस 1 एंड यू कैन राइट लाइक दैट एज वेल, l t माइनस 1 एक ही ब्रैकेट में। सो डायमेंशन ऑफ bt है समझ बेटा। नाउ नेक्स्ट का निकालते हैं बेटा, डायमेंशन ऑफ b का भी निकल गया, a का भी, नाउ c। सो ये एग्जांपल के थ्रू आपको किसी का भी डायमेंशन निकालने को दिया जाएगा तो आप निकाल सकते हो। अभी हम सिर्फ वही डायमेंशंस देखते हैं जो चीज़ें आपने देखा है, मींस टाइम, डिस्टेंस, लेंथ, MLT बेस्ड ओनली, सॉरी। नेक्स्ट निकालना है हमें C का डायमेंशन बेटा। तो इन द सिमिलर मैनर यू विल गो, डायमेंशन ऑफ सबको एक साइड फिर से, सॉरी एक मिनट वेट बेटा, माइनस dt स्क्वायर बाई e प्लस टी। ओके, सो डायमेंशन ऑफ x वी नो दैट, एंड a का फाइंड हो गया, b का भी, एंड नाउ c का। सो डायमेंशन ऑफ x एंड डायमेंशन ऑफ ct विल बी, ct स्क्वायर विल बी सेम, एंड डायमेंशन ऑफ x इज l बेटा। सो डायमेंशन ऑफ ct स्क्वायर, t का डायमेंशन t है, टाइम स्क्वायर, सो स्क्वायर बेटा, एंड हियर c। सो ये किधर आएगा, डिवाइड में, अंडरस्टूड, ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस। सो वी कैन राइट हियर डायमेंशन ऑफ c विल बी l t माइनस 2, ओके, l t माइनस 2। सो c का भी डायमेंशन समझ में आया बेटा, ओके। अब नाउ d, वन मोर थिंग बेटा हियर, व्हाट, E plus t is written here. E plus t homogeneity से क्या कहती है बेटा, says that dimension of each term must be same and same physical quantity can be added to each other. इसका मतलब अगर E और T सेम क्वांटिटी है फिजिकल, इसलिए ऐड हो रही है, सो सेम फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन भी सेम होगा। इट्स मीन दैट बेटा डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T. I'm repeating again. Homogeneity says that same physical quantity can be added or subtracted. तो यहाँ पे सेम चीजें ऐड हो रही, सेम फिजिकल क्वांटिटी, सो डायमेंशन ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम बेटा। सो डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T। सो डायमेंशन ऑफ T इज ए टाइम, सो डायमेंशन इज कैपिटल T, तो डायमेंशन ऑफ आपका E भी आ गया। नाउ डायमेंशन ऑफ D बेटा, D का निकालते हैं। सो डायमेंशन ऑफ D का निकालेंगे तो उसके पहले एक चीज ध्यान रखना, ये पूरा एक टर्म है तो ये पूरे टर्म का डायमेंशन इसके x के डायमेंशन के बराबर होगा। सो डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ dt स्क्वायर
बाई ई प्लस टी। ओके, अब इसमें से बेटा वॉट एवर इंफॉर्मेशन वी हैव जस्ट राइट हियर, डायमेंशन ऑफ एक्स इज L, you can write here 1, no issues. This side you don't know the dimension of D, but T का dimension T की power 2, and here dimension of T is capital T, dimension of E भी capital T, so we can write 2T. no, दोनों सेम क्वांटिटी है बेटा. सपोज 2 kg प्लस 3 kg, तो हम क्या लिखते हैं, kg स्क्वायर नहीं, 2 kg 3 kg मीन्स 5 kg, मीन्स 2 बार kg तो भी डायमेंशन kg ही रहेगा. वैसे ही 2 बार यहाँ पे E और T दिया है, दोनों का डायमेंशन T है, तो डायमेंशन सिर्फ एक ही T जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्वांटिटी ऐड हो रही है, मल्टीप्लाई नहीं. जब हम kg इंटू kg करते तो kg स्क्वायर होता है, एडिशन में नहीं. सो E का भी T है और T का भी T है, तो दोनों का डायमेंशन अगर कैपिटल T है बेटा, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक T लिखेंगे. हियर 1 and 2, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, अगर डायरेक्टली लिखें हम डायमेंशन ऑफ D, फर्स्ट ये रहेगा आपका डायमेंशन ऑफ L, T से T कैंसिल, एक L बचा, एक T बचा बेटा, ये मल्टीप्लाई होता जाएगा डिवाइड में, फिर उसको ऊपर लिखेंगे तो T माइनस 1, तो D का भी निकल गया. आया समझ बेटा, हाउ टू फाइंड डायमेंशन ऑफ ABCD. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल दैट विल क्लियर योर डाउट, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. किसी का भी डायमेंशन निकालना होगा तो कैसे निकाल सकते हो, दैट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. टेक वन मोर एग्जांपल. P इज इक्वल टू A माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई BX. ओके, in which find the dimension of A by B. A by B का डायमेंशन निकालना है बेटा. A by B. Okay, where two things are given here. Here T is stand for time and X stand for displacement and P stand for pressure. and okay, ये तीन चीजें आप याद रखो. लेट्स सी, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम सबको एक साइड लेके आएंगे. सो P माइनस A माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइड बाई BX, ये पूरे टर्म को इधर लेके आ जाएंगे इक्वल टू 0. नाउ डायमेंशन ऑफ P. P इज प्रेशर. प्रेशर इज, पहले इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं अलग से बेटा. P इज प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. तो डायमेंशन फोर्स का क्या होगा, फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन. मास के लिए कैपिटल M, एक्सीलरेशन मीन्स बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर फॉर लेंथ, सेकेंड स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर, ऊपर लेंगे तो T माइनस 2. सो MLT माइनस 2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स. एरिया, एरिया इज मीटर स्क्वायर मीन्स लेंथ स्क्वायर. बेटा यहां तक समझ में आया, एरिया हमारा लेंथ स्क्वायर हो जाएगा यूनिट उसका डायमेंशन. अब यहाँ पे 1 है और ये 2 है, तो एक कैंसिल होगा, एक बचेगा, उसको ऊपर लेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा. सो फाइनल डायमेंशन ऑफ प्रेशर विल बी ML माइनस 1 T माइनस 2. सो दैट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर. लेट्स यूज हियर. And now here this side A minus T square beta. Homogeneity says that same quantity can be added and subtracted. It means that dimension of A and dimension of T square will be same. So dimension of A is equal to dimension of T square beta. T stand for time, time का dimension
कैपिटल टी, सो कैपिटल टी स्क्वायर, ओके, बिकॉज स्क्वायर इज गिवन देयर। सो डायमेंशन ऑफ ए आपका निकल गया कितना, टी स्क्वायर बेटा। सो ये पूरे का डायमेंशन ऊपर वाला टर्म का कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। व्हाट अबाउट बी एक्स, एक्स इज यू नो दैट एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ। तो अब इसको हम पूरा फिर से लिखें बेटा, तो डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल टू द डायमेंशन ये पूरा टर्म। सो पी का डायमेंशन क्या था बेटा, एम एल माइनस 1 टी की पावर 2, यही डायमेंशन में निकाला था अभी। अब इसके इधर ऊपर वाले टर्म का डायमेंशन कितना हुआ बेटा, टी स्क्वायर। हियर बी एंड डायमेंशन ऑफ एक्स इज टाइम, सॉरी डिस्टेंस मीन्स एल। नाउ बी को इस साइड ले लेते हैं बेटा और ये उस साइड नीचे चला जाएगा। सो डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर और एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 एंड अगेन L1. सो L1 एंड L माइनस 1 कैंसल, टी ऊपर जाएगा, टी माइनस 2 है ऊपर जाएगा बेटा टी की पावर 4 एंड m विल बी मास, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये m माइनस 1, L एंड L कैंसल बेटा एंड t माइनस 2 ऊपर जाके प्लस 2, सो t की पावर 4। ये आया डायमेंशन b का। और a का कितना आया था डायमेंशन, t स्क्वायर बेटा, बट दे आर आस्किंग द डायमेंशन ऑफ a बाई b। सो a बाई b का डायमेंशन निकालने जाएंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, सो डायमेंशन ऑफ a बाई b विल बी डायमेंशन ऑफ a कितना था बेटा, टी स्क्वायर एंड b इज m माइनस 1 एंड t रेज टू 4, ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर m1 प्लस एंड t माइनस 4, टी स्क्वायर एंड t प्लस 4। सो आपका फाइनल आंसर विल बी डायमेंशन ऑफ a बाई विल बी m1 t minus 2. So that is the, sorry you have to use square bracket, so that is the dimension of a by b, okay। तो इस तरह से हम डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं बेटा किसी भी क्वांटिटी का, okay।